Welcome back. You're watching The Money Show with me, Kavita Thaplial, and there are plethora of funds available in the market to invest your hard-earned money in. But how do you assess which is the right fund for your portfolio? What are the criteria that one should look at to help you navigate through this maze? Today I have with me Pankaj Matpal, MD of Optima Money Managers. Also, do not forget to send us your portfolio queries. You can WhatsApp us your questions on 8657974571. You can also email us your queries on The Money Show at etnow.tv. Hi, good evening, Pankaj, and welcome to The Money Show. Let's take first question, which is from Manmeet, and Manmeet is from Kochi, and he's writing to us. He says that he needs to invest 10,000 rupees monthly in one or two funds that can potentially yield a corpus of 20 to 25 lakhs in 10 years time frame, and currently he's investing 10,000 in Sukanya Samriddhi, HDFC Children's Gift Fund, and he also wants to know if he should be increasing his investment amount in these schemes to achieve a total corpus of almost around 60 lakhs. Kavita, good evening. Regarding this Sukanya Samriddhi Yojana, I'll say that he should not increase the amount, but he should continue with this scheme. So he's been investing 10,000 rupees per month. He can continue with this. And HDFC Children's Gift Plan, that is a good fund. He can continue with that as well. He can consider increasing his SIP amount. But for this fresh 10,000 rupees, for 10 years investment horizon, suggests that he should select two funds. One can be a multi-cap fund, because in multi-cap, he will get exposure to large cap, mid-cap, small cap, all types of market caps. And along with that, one scheme can be a large and mid-cap fund. So two schemes, and ICICI Prudential multi-cap fund can be a good choice in multi-cap category. And also Motilal Oswal large and mid-cap fund will be another scheme suggested by me. Let's move on. I have Mr. Nand Kishore from Nagpur on the phone line with me. Hello, good evening. How are you doing? मैम एक्चुअली मुझे SIP स्टार्ट करनी है फॉर 50,000 पर मंथ. 50,000. ओके ओके. 50,000. एज है 30. ओके. 30 years. कितने साल तक 15 to 20 years. 15 to 20 years. ओके. 50,000 SIP करनी है मुझे, और कुछ मुझे फंड है मेरे पास 4 लाख रुपीस, वो लमसम डालना है. 4 लाख आपके पास है पड़े हुए, वो भी आपको निवेश करने. तो 50,000 की SIP करेंगे हर महीना? हर महीना, बिल्कुल. और 4 लाख रुपए लमसम. कोई गोल आपने इसके साथ टाई अप किया हुआ है? क्या बोली? कोई लक्ष्य आपने बांधा हुआ है इस इन्वेस्टमेंट? ना, मेरा अर्निंग हो रहा है तो मुझे स्टार्ट करना है, बस गोल कोई ये नहीं है. और 50,000 तो सफिशिएंट है ना. पहली बार नंद किशोर जी इक्विटी मार्केट्स में पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए? हाँ. ओके. इसके अलावा आपने कुछ मेरे पास बाहर स्टॉक्स है मेरे पास बाहर के. ओके. पर भारतीय इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए पहली बार निवेश है ना? पहली बार निवेश कर. नहीं, मेरे पास 2-3 SIP हैं, छोटी छोटी, बहुत दिनों से चल रही है, 3 साल से चल रही है. क्या नाम है? DSP. नाम बता पाएंगे? ABSL का है और DSP का है. क्या फंड्स के नाम है? ABSL मिड कैप है. और ABSL के हैं. ABSL मिड कैप आपने कहा ना कि DSP मिड कैप का? नहीं, DSP मिड कैप का. और ABSL का कौन सा है? ABSL का थोड़ा सा देखना पड़ेगा. चलिए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए. तब तक हम पंकज मटपाल जी के पास जाते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज करेंगे. पंकज जी, 50,000, 50,000 SIP एंड 15 to 20 years time frame and 4 lakh lump sum. You can answer in Hindi for him. नंद किशोर जी, पहली बात तो ये है कि जो 4 लाख रुपए लमसम आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी लंबे समय के लिए करेंगे, बिकॉज जो आप SIP कर रहे हैं उसके लिए आपने कहा है कि 15 to 20 years का टाइम है. उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा. एंड सेकंड थिंग, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि इक्विटी फंड सभी एक जैसे नहीं होते हैं. वो किस तरह की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के सेक्टर्स में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है. तो जैसा आपने भी कहा कि आपको स्कीम का नाम कुछ ठीक से नहीं है कि ABSL की कौन सी स्कीम है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आप लार्ज कैप फंड में कर रहे हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप में. लेकिन 15-20 ईयर्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप रहेंगे, तो आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं. एक बात और इम्पोर्टेंट है कि मार्केट का नेचर है इक्विटी मार्केट का कि
उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है, लेकिन 15-20 साल की बात करेंगे तो रिस्क काफी कम हो जाता है। तो मैं आपको कुछ स्कीम सजेस्ट कर रहा हूँ 50,000 रुपीज के लिए 5 स्कीम्स। एक लार्ज कैप स्कीम है एंड दैट इज एन इंडेक्स फंड, बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इसे आप शामिल कीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एंड साथ ही मैं आपको एक इंटरनेशनल फंड भी बता रहा हूं, और वो होगा ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड। तो ये 5 स्कीम है 50,000 के लिए, और जो आपके पास लमसम 4 लाख रुपए हैं उन्हें भी आप स्मॉल कैप छोड़कर इसमें से जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसमें लमसम ना करें, लेकिन बाकी जो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड, इन 4 फंड्स में उस 4 लाख को भी आप 1-1 लाख करके डिवाइड कर लें। तो ये अपने सजेशन रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। नंद किशोर जी, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ और आपको पूछना है? मैडम एक्चुअली इन्होंने मुझे बता दिया है, बट इन्होंने इतना स्पीडली बताया कि मेरे पास फंड के लिख भी नहीं पाया। इसके लिए कुछ मेल पे करा नहीं, कोई बात नहीं। सो ये जो शो है हमारा, ये दरअसल फेसबुक और यूट्यूब पर भी जाता है, तो अगर आप फंड्स के नाम ही पूछना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप शो वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर कोई सवाल? के अलावा नहीं। फंड का नाम पता चला आपको? ABSL का कौन सा था? नहीं, वो तो नहीं चला, बट इन्होंने जो बताया मुझे, इसमें एक्सिस स्मॉल कैप बताया, इसमें US जी, कई सारे फंड्स आपको बताए हैं, तो मेरे ख्याल से आप शो यूट्यूब पर देख सकते हैं और आपको फंड्स के नाम एक बार फिर से मिल जाएंगे। यूट्यूब में कैसे देखूं मैं, कैसे कहाँ जाके देख लूं? हमारा चैनल का यूट्यूब चैनल है और उस पर जाइएगा, द मनी शो ढूंढिएगा और आपको वहाँ पे सारे शोज मिल जाएंगे जिसमें आज का भी शो होगा। Thank you so much, Nand Kishore ji. Or with that, Pankaj, it's a wrap on the show today. Thank you so much for being a part of the show and helping our viewers with their financial portfolio queries. And time to sign off, but I'm going to leave our viewers with our WhatsApp number and email ID so that you can reach us with your questions and we can do your life financial planning on the show. Thank you so much. Goodbye.